Hi everyone, in this lecture we will discuss about the ecological succession. So, ecological succession is the process by which the natural communities replace or succeed one another over time. Means one community replace another community. Thus, the progressive replacement of the one community by another till the development of stable community in a particular area is known as ecological succession. मीन्स कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है और एक स्टेबल कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में बन रही है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. फाइन. सो नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो पाइनियर स्टेज, सबसे पहली स्टेज जो आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन में होती है उसको हम पाइनियर स्टेज बोलते हैं. The first group of organism which establish their community in an area is known as pioneer community. Next one is serial stages, जो different type की stages होंगी. The various development stages of a community is called series. ठीक है, serials. Next one is community. It is a age group of plants and animal living in an area. ठीक है, जो आपके plants और animal किसी particular area में होंगे उसको हम बोल देते हैं community. Fine. Next one is type. So ecological succession can be characterized as according to the formation on different type of areas. हाइड्रोसियर जो आपके पानी में है, मिजाज दो बीच में रहता है, जीरोसियर जो आपके ड्राई एरियाज होते हैं विदाउट एडिक्वेट मॉइस्चर. ठीक है, विजार्ड हैज़ द फॉलोइंग. जो आपके जीरोसियर है उसके आपके पास डिफरेंट टाइप के होता है, लाइक लिथोसियर, स्पैमोस्फीयर एंड हैलोसियर. अकॉर्डिंग टू द काउज ऑफ अकरेंस there is two type of succession: primary succession and secondary succession, according to the formation on different type of areas, like hydrosphere जो आपके watery areas में होता है, mesosphere जहाँ पे adequate moisture present है, xerosphere starting in dry land or areas without adequate moisture जहाँ पे present ही नहीं होगा, mesosphere means बीच वाला area. ठीक है, Zizarch has the following type, means जो जीरोस्फीयर है उसकी 3 स्टेजेस होते हैं: लिथोस्फीयर, स्पैमोस्फीयर एंड हैलोस्फीयर. अगर हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं, जो आपके बेयर रॉक का सरफेस एरिया होता है वहाँ से लिथोस्फीयर स्टार्ट होता है. जो स्पैमोस्फीयर होता है वो आपके सैंड वाली सॉइल से शुरू होता है. हैलोस्फीयर आपका सलाइन सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, देखिए हाइड्रोस्फीयर की स्टेजेस बताई हुई हैं. देखिए न्यूली फॉर्म वाटर है, इसमें फाइटोप्लैंक्टन स्टेज. ठीक है, फिर आप थर्ड वन इज रूटेड सबमर्ज स्टेज. फोर्थ इज रूटेड फ्लोटिंग स्टेज जिसमें प्लांट थोड़ा फ्लोट कर रहे हैं. एंड फिफ्थ वन इज रेड स्वैम्प स्टेज. एंड सिक्स्थ मार्च और मिड आउट स्टेज. एंड सेवंथ इज वुडलैंड स्टेज. एंड एट इज एक फॉरेस्ट ही बन जाता है, फॉरेस्ट स्टेज. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बताए हुए हैं हाइड्रोस्फीयर के, मीजोस्फीयर के, लिथोस्फीयर, स्पैमोस्फीयर एंड हैलोस्फीयर्स के. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज 2 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूज्ड ऑन द कंडीशन प्रेजेंट at the beginning of the process. There is primary succession and secondary succession. If we are discussing about the primary succession, it happen when a new patches of the land is created or exposed for the first time. Means कि जब एक नया लैंड फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है या तो एक्सपोज हो रहा है, मतलब पहली बार. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन लावा कूल एंड क्रिएट अ न्यू रॉक, और व्हेन अ ग्लेशियर रिटेट्स एंड एक्सपोज रॉक्स विदाउट एनी सॉइल. ठीक है, ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन ऑर्गेनिज्म मस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. First, lichen might attach themselves to the rock, bare surface area, and few small plants able to live without much soil might appear. These are called pioneer species. मैंने आपको पहले भी बताया, जो सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी सक्सेशन में is known as pioneer stage. The decomposition of those plants contribute to soil formation, and more and larger plants begin to colonize the area. Eventually enough soil forms and enough nutrients become available such that the climax community like a forest is formed. मतलब सबसे end वाली community is a climax, pineal is the first community, and serial are जो different type की stages हो जाते हैं बीच में, उनको हम serial stages बोल देते हैं. ठीक है. So next one is, if the site is, देखो, if the site is disturbed after this secondary succession occur. ठीक है, तो देखिए ये बेयर रॉक थी हमारे पास, यहाँ पे लाइकन डेवलप होना शुरू हुए, स्मॉल एनुअल प्लांट और लाइकन बल के ग्रासेस एंड जो पेरिनल स्पीशीज होती हैं वहाँ यहाँ पे आई ग्रासेस और श्रब बने, और एंड में एक पूरा फॉरेस्ट ही बन जाता है. ठीक है.
नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन कब होता है? जब जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है और जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है वो इम्पैक्टेड की जाती है, कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल किसी जंगल में आग लग गई तो वो बेयर रॉक से शुरू से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? तो दिस रिस्टार्ट द साइकिल ऑफ सक्सेशन बट नॉट बैक टू द बिगिनिंग। सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स आर स्टिल प्रेजेंट देयर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर दैट किल ऑल द मेच्योर ट्रीट, सारे प्लांट तो जल जाते हैं किसी पर्टिकुलर उस फॉरेस्ट के। ऑन अ पर्टिकुलर लैंडस्केप ग्रासेस might grow followed by the shrubs and a variety of the tree species until eventually the community that exists before the fire is present again. Fine. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी, मैंने बता दिया यहाँ पे फॉरेस्ट को आग लगी। अब ऐसा नहीं है कि ये बेयर रॉक से फिर से शुरू होगा, तो यहाँ पे ग्रासेस और पेरिनियल्स होते हैं, ग्रासेस श्रब, और फिर से पूरा बन जाता है 100 साल बाद, ठीक है? इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने आपको बता दिया, इसकी हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं: न्यूडेशन, इन्वेंशन, कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। सो नंबर 1 इज process of ecological succession. So nudation, it is a development of the bare area without any life form. सबसे पहले क्या होगा, देखो जैसे एक एग्जाम्पल दिया हो, ये हमारे पास एक पहाड़ था, यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया, तो सबसे पहले न्यूडेशन हुई, एक डेवलपमेंट हुई किसी बेयर एरिया की विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। And second one is invasion. It is the establishment of one or more species on that bare area. अब जैसे यहाँ से ये मिट्टी गिरी इस पहाड़ से, अब नीचे तो मिट्टी गिर गई, वहाँ पे तो प्लांट ग्रो ही करेंगे, तो इन्वेंशन, इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज की उस बेयर एरिया पे विदाउट माइग्रेशन, ठीक है? थ्राउट माइग्रेशन फॉलोड बाय माइग्रेशन होती है सीड की स्प्राउट बाय द विंड, वाटर और बर्ड्स। और इस्टेब्लिशमेंट, the seeds then germinate and grow on the land and establish their pioneer communities, means starting communities जो होती हैं, ठीक है? Competition, as the number of individual species grows, there is a competition with the same species between different species for space, water and nutrients, ठीक है? Interspecific competition and intraspecific, ठीक है? ये सारा इसमें आता है। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मॉडिफाई द इन्वायरमेंट इज नोन एज रिएक्शन, मीन्स सब कुछ मिल रहा है, अच्छे से मतलब डेवलप कर जाते हैं। दिस मॉडिफिकेशन बिकम अनस्टेबल फॉर द एग्जिस्टिंग स्पीशीज एंड फेवर some new species which replace the existing species, and this led to the serial communities. And last is stabilization. It is the last stage in the ecological succession. The final or terminal community become more or less stabilized for the longer period of time. This community can maintain its equilibrium with the climate of the areas. और जो final community होती है उसको हम climax community और क्लाइमेक्स स्टेज बोल देते हैं। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो इमीडिएटली रिप्लेस कर देती है अदर कम्युनिटीज़ को। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटीज फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड कोरल रीफ्स, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो थैंक यू एवरीवन।